A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your accounts teacher. Today we'll be solving the accounting fundamentals of partnership. That is the question number 9 of question paper of accounts that was held in 2023 examinations. The first question, there were two questions. The first of them is that there were three partners, Shiv, Azim and Angad. They were sharing profits in the ratio of 2:2:1. Their capitals, fixed capitals, okay, were 4 lakh, 6 lakh and 2 lakh. The accounts for the year ended 31st March were closed. Current account balances were this much and they were determined as Shiv 35,000, Azim 40,000 and Angad 25,000. Now later on a few errors were discovered that they were given interest on capital at 10% per annum. Sorry, even though there was no provision. When there is no provision of it, no interest on capital has to be given. Then salary of 16,000 per annum to Shiv and 20,000 per annum to Azim was not allowed, even though there was a provision of this. Then commission of 24,000 was allowed to Angad, even though there was a provision for the commission there. Despite a provision, so it was not allowed, even though there was a provision. So we have to make adjusted current accounts of partnership. Okay, wherever I found it in the book, there was only the question of journal entries, but here we have to make current accounts. So first in this we will make the adjustment part. Adjustment part means we will make the table of adjustment, जिसमें सबसे पहले we will be writing the current account balances. Okay, the very first thing is the part of current account balances, या फिर जो opening balances थे उनके current account balances means ये उनके closed balances थे सबसे end में last वाले. तो what were the balances? 35,000, 40,000 and 25,000. It will be written as here 35,000, 40,000 and 25,000. Okay, 35,000, 40,000 and 25,000. These three balances we have written. Next says that interest on capital 10% पर annum नहीं अलाउ करना था, बट एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर दिया है. तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है, इससे this is this much means this is the part that is closed now. ये हम लोग ने यहाँ पर ऐसे सिर्फ लिख दिया है. एडजस्टमेंट आपका कहाँ से शुरू होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरू होगा. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरू होगा. तो द फर्स्ट थिंग इन दिस इज 4 लाख, 6 लाख और 2 लाख पर 4 लाख का 10% दैट इज 40,000 टू अजीम. 40,000 उसको दिया है, बट ये नहीं देना था, इसलिए हम इसको माइनस फिगर में रख रहे हैं. देन 6 lakh was given to him, 6 lakh and 2 lakh. So it will be here written as 60,000 and here it will be written as 20,000. ये वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो उनको दे दिया गया है बट उनको नहीं देना है, तो ये उनके करंट अकाउंट बैलेंसेस से माइनस कर दिया जाएगा. नेक्स्ट थिंग व्हाट इज गिवन हियर इज सैलरी ऑफ 16,000 पर एनम टू शिव एंड 20,000 पर एनम टू अजीम. शिव और अजीम को सैलरीज मिल रही हैं ऑफ 16,000 एंड 20,000. ठीक है, अंगद के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ पर माइनस कर देंगे. दिस विल बी सैलरी, मतलब इट हैज टू बी एडेड इन देयर. नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ डेबिट, दिस इज द पार्ट ऑफ क्रेडिट. ओके, देन लास्ट वन इज कमीशन दैट इज गिवन, दैट वाज नॉट अलाउड टू अंगद. तो अब हम उसको कमीशन देंगे ऑफ हाउ मच? 24,000. दिस विल बी रिटन हियर एज commission. How much is the commission? Commission is 24,000. Okay, so now comes the net effect that will be shown here. अभी हम इस पार्ट को हटा करके बता रहे हैं because we have to already make the current account separately. तो 24,000 ये जो उसको मिलना था और 20,000 ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट कर लो. This will be 4,000 and मतलब इसका जो ये 25,000 होगा, इसमें 4,000 will be added. This will be the credit balance that will be added. Then in this part 40,000 उसका ऑलरेडी बैलेंस था. ये जो 60,000 माइनस में से 20,000 को माइनस करो, तो this 40,000 will be the debit balance means उसका माइनस फिगर आएगा. मतलब कि अगर 40,000 में 40,000 माइनस हो जाएगा तो there will be zero, no balance will be left.
देन लास्ट में 4000 में से 16,000 माइनस किया, जो 4000 में 16,000 माइनस किया, दिस विल बी 24,000. तो ये 24,000 अगेन दिस विल बी द डेबिट बैलेंस, मतलब उसका जो बैलेंस है 35,000 में से 24,000 माइनस किया तो डेबिट बैलेंस 11,000 बचेगा. नाउ वी विल मेक द करेंट अकाउंट. सी दिस इज जस्ट फॉर योर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है कि आपको एडजस्टेड करंट अकाउंट बनाना है. ओके, तो योर एंट्री या योर मार्किंग विल ओनली बी फ्रॉम दिस पार्ट. इससे ज्यादा ये सिर्फ आपके समझने के लिए था. You can make it since it was given in the book, so I have explained it the very same way. So the first thing here we will make is the buy balance of this buy balance brought down. Okay, what was the balance? Sorry, this was the adjusted balance only. Already ये वही वाला balance है, बस हम उसमें थोड़े से changes कर रहे हैं. तो 35,000 ये, 40,000 ये और 25,000 ये तीन हो गए. इसके बाद व्हाट इज देयर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजुअली यहां लिखा जाता है, पर हमें इसको माइनस करना है, तो इट विल बी रिटन हियर एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स. All three interest will be 40,000 will be deducted from here, 60,000 from here and 20,000 from here. Then next is the salary has to be given, जो नहीं दी गई थी, अब उसको इसमें ऐड करोगे. सैलरी वॉज 16,000, 16,000 एंड 20,000. ओके, देन कमीशन वॉज टू बी गिवन, तो इट विल बी रिटन हियर एज बाय कमीशन टू whom it is to be given to only अंगद. 24,000 का ये उनको मिल गया. इसके बाद you will do the totals of it. तो when you will do total of this side and this side, what will be the total? इस साइड का टोटल आएगा, फर्स्ट विल बी 51,000, नेक्स्ट विल बी 60,000 as it is given, and third one will be 49,000. ठीक है, after this 49,000, now this is the main balance, 51,000 here also, 60,000 and 49,000. अब इन ये जो टोटल बैलेंस आया है इसमें से you will bring out the main balance. ये आपका carried down मेन बैलेंस रहेगा. ये आपका what will be the balance? 51,000 में से 40,000 माइनस किया, 11,000 is your adjusted. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये आपका एडजस्टेड पार्टनर्स करंट अकाउंट है. फिर अजीम का 60,000 में से 60,000 गया तो देयर विल बी नथिंग लेफ्ट. देन 49,000 में से 20,000 चला गया तो दिस विल बी लेफ्ट इज 29,000. ओके, जितना यहाँ पर नेट इफेक्ट शो किया गया वो सारा का सारा यहाँ पर यू विल शो इट इन द सिमिलर वे. Next we will move to the second part of the question. Mostly people would have done this question itself. The question says that Ruma and Neha they are partners with a fixed capital. कितनी है उनकी फिक्स कैपिटल? 4 लाख और 3.5 लाख. अक्टूबर 1 को दे डिसाइडेड कि उनका जो टोटल कैपिटल है वो कितना होना चाहिए? 8 लाख टू बी डिवाइडेड इनटू 3:2. Accordingly they will either introduce the extra capital or withdraw the capital. Then interest is to be allowed. Interest on capital is to be allowed at 10%. Monthly salary of this month means yearly 12,000 हो जाएगी. To both Ruma and Neha, interest from drawings is to be charged at 10% per annum. Even though interest from drawings has already been given here, आपको drawings as well as the interest on drawings दोनों चीजें ही दे दी गई हैं. Okay, और उसके बाद during the year this much there was a net profit of 2,04,000 before charging इतनी मैनेजर्स कमीशन, और इसको चार्ज करने से पहले इतना था. तो ये वाला जो नेट प्रॉफिट है इसमें क्या लिखा हुआ है? 2,04,000 का आपका नेट प्रॉफिट. उसको अगर आप यहीं से ही माइनस कर लोगे तो 4,000 आपने यहीं पर ही 4,000 ये वाले माइनस किए, और इसी 4 और आपने क्या माइनस किया? 204 से 00. तो द आंसर विल बी 179600. एक मिनट, इट विल बी, लेट मी चेक. Yes, it will be 179600.
600। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर एंट्रीज। व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड, आपको उसमें कोई भी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ जर्नल एंट्री दिखानी है रूमास ड्रॉइंग्स अकाउंट की, टू क्लोज रूमास ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अप्रोप्रिएशन पार्ट यू हैव टू शो। सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ये दो चीजें आपको बनानी है इसमें। ओके, तो फर्स्टली वी विल मूव टू द पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हियर। ठीक है, तो one thing we have already done in this, the first one is the amount, the net profit। नेट प्रॉफिट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका पार्ट वाज 179,600। ये आपका एडजस्टमेंट है। अब इसमें सबसे पहली चीज पूछी गई है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किस चीज की पूछी गई है? रूमास ड्रॉइंग्स अकाउंट की। तो हाउ इट हैज टू बी क्लोज। देखो, अब इसमें दो एंट्रीज होती हैं। यू कैन टेल मी वॉट एवर एंट्रीज यू हैव डन। फर्स्ट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्लोज करने की। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट इज क्लोज्ड एज रूमास करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि इट विल नॉट, करंट अकाउंट में हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड हैं। तो इट विल गो टू रूमास करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ओके, जैसे आप उसमें मेंशन करते हो। अमाउंट यू विल टेल मी कि इसमें क्या अमाउंट जाएगा। एक और इसकी एंट्री होती है, दोनों सेपरेट चीजें हैं, बट यहाँ यूजुअली जो दिया रहता है दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्लोज करने की एंट्री होती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ये दोनों की क्लोजर वाली जर्नल एंट्री है। आस्क्ड एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आस्क्ड वन, अमाउंट यू विल टेल। आस्क्ड जो पूछा गया है वो आपसे ये वाला पूछा गया है, बट अगर ये लिख भी दिया है देन ऑल्सो इट्स ओके। हो सकता है कि इस चीज को भी कंसिडर कर लिया जाए, बिकॉज बोथ गो हैंड इन हैंड। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इज कि आपको टोटल कैपिटल दिया हुआ है। देखो, टोटल कैपिटल, व्हाट इज द टोटल कैपिटल गिवन इज 8 लाख। क्या कहा गया है इसमें? एडजस्टमेंट पढ़ो पहले। सबसे पहले व्हाट हैज बीन सेड कि उन्होंने डिसाइड किया था कि उनका जो टोटल कैपिटल होगा वो 8 लाख होगा। फ्रॉम 1 अक्टूबर दैट हैज टू बी 3 लाख। 3:2 के रेशियो में वो डिवाइड किया जाएगा। तो व्हेन इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3:2, दो लोग कौन थे? रूमा एंड नेहा। ओके, तो व्हेन यू विल टेक दिस कैपिटल, 8 लाख उनकी टोटल कैपिटल है, दिस विल बी इनटू 3/5। हमें ये देखना है कि अक्टूबर से उनका कैपिटल कितना चेंज हो जाएगा। तो एंड दिस विल बी 8 लाख का इनटू 2/5। तो एक्चुअल अर्लियर उनका कैपिटल कितना था? अर्लियर कैपिटल वाज 4 लाख एंड 3,50,000। ठीक है, so now this will be 8 lakh into 3/5. The answer of this will be 4,80,000. 4,80,000 is the answer. And the next one is 8 lakh into 2/5. It will be 3,20,000. ठीक है, तो अर्लियर जब इनका पहले वाला कैपिटल देखोगे तो पहले का इनका कैपिटल था 4 लाख। किसका? रूमा का। तो नाउ जो 80,000 रुपीज है एक्सेस में, दैट शी विल ब्रिंग। ओके, एडिशन करेगी, या फिर आप इसको कह सकते हो कि एडिशन ही करते हैं इसको। ठीक है, और इनका जो अर्लियर कैपिटल था दैट वाज 3,50,000। तो व्हाट शी विल डू नाउ, दिस 3,50,000 जब इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनको 30,000 रुपीज क्या करने हैं, इसमें से विड्रॉ करने। ओके, हु विल विड्रॉ? नेहा एंड रूमा विल एड। अब इनका काम क्या है यहाँ पर? बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, बट फिर भी इसका काम इसलिए बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन इट। नाउ फर्स्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यहाँ पर क्वेश्चन यू विल स्टडी, तो यू विल गेट टू नो कि अक्टूबर 1, 2021 से उनका कैपिटल इतना था, उससे चेंज हुआ था। तो उससे पहले तो इतना था ना, 4 लाख और 3.5 लाख। तो
first you will take it, the amount will be taken from 1st April, okay, 1st April to 30th September. How much? सबसे पहला we will take of Ruma and second we will take of Neha. ठीक है, तो ये कितना लिया जाएगा? दिस विल बी, इनका कैपिटल था 4 लाख और इनका कैपिटल था 3.5 लाख. इनटू यू विल टेक 10% ऑफ इट एंड हियर ऑल्सो यू विल टेक 10%. और क्योंकि 6 महीने गए तो दिस विल बी 6/12 एंड 6 बाय दिस विल बी ऑल्सो 6/12. तो 40,000 का 10%, सॉरी 4 लाख का 10% 40,000 और इंटू 6/12 दिस विल बी 20,000 एंड 3.5 लाख का 10% इंटू 6/12 दिस विल बी 17500. ये हो गया एक पार्ट ऑफ कैपिटल. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द कैपिटल, जहां पर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st October. ठीक है, जहां से इनका जो कैपिटल है वो चेंज हो रहा है. 1st October टू 31st March it will go. The first part Ruma's capital and the second is Neha's capital. Ruma जिनकी कैपिटल अब कितनी हो गई है? 4,80,000. 4,80,000 का 10% इंटू 6/12, तो इट विल बी 24,000. ठीक, हाफ वी विल टेक ऑफ दिस. एंड सेकेंड पर्सन कौन है? नेहा. नेहाज न्यू कैपिटल इज 3,20,000 का 10% 32,000 इंटू 6/12. नाउ इट विल बी 16,000. ओके, तो अब जो टोटल इन लोग की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू विल टेक इज 20,000 ये और 24,000 ये. तो यहाँ पर वी विल डू द टोटल ऑफ इट. This will be 20,000 plus 24,000 of Ruma. So Ruma's total interest on capital will be 44,000 of Ruma and Neha's capital will be 17500 plus 16,000. Okay, so it will be in total, this will be 3,3,500. Okay, तो now we will move towards the main question. ये वाला सारा part इसका हो गया. Net profit we have already done. So now we will move towards our question of P&L appropriation. Okay, so in P&L appropriation, the first thing that you will mention is a part of here you will write the amount. So the first thing that you will mention here is the part of net profit that will be shown as by profit and loss account. Okay, adjusted वाला लिखोगे, that is 179,600. in this you will also add. अब सीधे question पर आओ. Question says कि interest on capital has to be allowed per annum this much. Okay, तो first thing will be the interest on capital जो उनके डेबिट साइड पर जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस टू द फर्म. तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इधर आएंगे, जितनी भी इनकम्स होंगी वो इस साइड पर आएंगी. तो फर्स्ट एक्सपेंसेस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ने अभी दोनों का सेपरेट कैलकुलेट किया था, ऑफ रूमा एंड ऑफ नेहा. So first one is of 44,000 of Ruma and 3,3500 of Neha. It will be 7,7500. Next will be salary. You will give salary, दोनों को जाएगी 12,000 rupees as one monthly each ना. तो दोनों को 12,000 रुपए 12,000 salaries will be given. तो that is 24,000 ये आएगा. इसके बाद nothing else is there. तो यहाँ पर you will write the profit transferred to whom? To Ruma's capital account. Okay, and Neha's capital account.
और यहाँ पर अभी द थिंग विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी हियर, ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में ही जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी रिटन, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। आप इसको कैलकुलेट भी करोगे, 12,000 इंटू 12,000 इंटू 18% इंटू 6/12, तो यही वाला ही आंसर आएगा, दैट इज 1080। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सो दिस इज 1080। एक मिनट, एज पर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू दिस मच ओनली 1%, रूमा हैज विड्रॉन, तो सिर्फ उसके ही इंटरेस्ट विल बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मीन्स दिस मच विल बी द अमाउंट टोटल, तो इस साइड पर सिर्फ इतना ही पैसा आएगा, दैट विल बी 180,680। okay, so this will be the total of both the sides, 180,680. Deducting this total from these two, the answer will be 179,180, जिसको हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, it will be divided in the profit sharing ratio, that is 3:2. so when it will be divided, it will be 47508 and 31672. okay, so this was the part of the fundamentals question. I hope you have understood this much. Keep preparing for whatever exams you have to prepare. Best wishes for your exam. Thank you.